Morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with a discussion of the password. Our password for today is provide. P-R-O-V-I-D-E provide. ये verb है, action word है, doing word है. The meaning of this word in Hindi is प्रदान करना. In English its meaning is to give something to somebody who needs it. किसी को वह देना जिसकी उसे आवश्यकता हो. Now about using this word to frame a sentence. It can be like that the earthquake victims were provided with food and medicines. So that was about our password. I have picked this word from our EVS chapter that we are doing these days. Children, what we are going to do today in our EVS class, we will have a quick revision of our chapter, that is chapter number 10, useful animals. So let us start. Children, we have been doing EVS chapter number 10, useful animals these days. So about the uses of animals or some useful animals, I want to tell you that we had discussed about animals in our previous chapter, that was food we eat. हमने animals के बारे में तब भी discuss किया था that we get food from plants and animals. हमें plants और animals से food मिलता है. Now in this chapter we are discussing in detail about the uses of animals or some useful animals. Animals are helpful to us in many ways. वो हमारे लिए बहुत helpful हैं. Animals are parts of our surroundings. They are parts of our environment. वो हमारी surroundings या environment का essential part हैं. So in this chapter we are discussing more about the uses of animals. So to be continued. Children, animals are source of food to us. Animals हमारे लिए food का source हैं. Animals give us milk. Animals हमें milk देते हैं. Some animals like cows, buffaloes and goats give us milk. Some other animals are also there that give us milk, like camels, yak. So milk is good for health. Milk health के लिए बहुत अच्छा होता है. And we use milk to make many things. हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं उस milk को use करते हुए. Children, we use milk to make many things. हम milk को use करते हैं बहुत सी चीज़ें बनाने में. Some of these things are here in front of you. This is the image of some of the things that we get from milk. So this is cheese. Here you can see cheese is made of milk. Cheese milk से बनता है. Some commonly used cheese kinds of cheese are pizza cheese, mozzarella cheese, cottage cheese. Cottage cheese पनीर होता है जो हम बहुत शौक से खाते हैं. So Switzerland is a country in Europe जो कि फेमस है चीज़ के लिए. So वहाँ बहुत तरह के चीज़ होते हैं और वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में. स्विट्ज़रलैंड इज़ इक्वली फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर और टेस्ट ऑफ चॉकलेट्स. वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स बनाई जाती हैं. सो वो बहुत फेमस है फॉर चीज़, फॉर चॉकलेट्स. सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ बटर जो कि हम हमारे जो करीज़ हैं उनमें भी डालते हैं और ब्रेड पर, टोस्ट पर भी स्प्रेड करते हैं. हम टोस्ट पर चीज़ के स्लाइसेस भी स्प्रेड करते हैं. वी यूज़ जो कि हम हनी भी स्प्रेड करते हैं चीज़ पर. सो दिस इज़ योगर्ट. ये योगर्ट है, दही है. कुछ लोग इसको कई दूसरी तरह से भी यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम मिल्क. ये मिल्क से ही बनता है. हे यू कैन सी इट कैन बी कॉल्ड खीर. इसे खीर कहा जा सकता है एज द इमेज इज़ शोइंग. सम मिल्क शेक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मिल्क. मिल्क शेक भी मिल्क से ही बनते हैं. चॉकलेट भी मिल्क से बनती है. और कुछ स्मूदीज़ हैं वो भी, उसमें भी मिल्क यूज़ होता है. और मिल्क इस तरह की कई चीज़ों में यूज़ होता है. केक में भी हम मिल्क को यूज़ करते हैं या कर्ड को यूज़ करते हैं. सो मिल्क ड्रिंकिंग में भी यूज़ होता है. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम मिल्क से बनाते हैं. चिल्ड्रन, खोया इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क. खोया एक प्रोडक्ट है जो कि मिल्क से बनता है. सो खोया इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी इंडियन स्वीट्स. बहुत सी इंडियन मिठाइयाँ बनाने में खोए का यूज़ होता है.
और द स्वीट्स दैट आर मेड फ्रॉम खोया आर वेरी डिलीशियस, वो बहुत डिलीशियस होती हैं और लोग पसंद भी करते हैं. सो सम ऑफ द इंडियन डेजर्ट्स आर हेयर दैट आर अगेन मेड फ्रॉम मिल्क. वी कैन सी रसमलाई, रसगुल्लाज, दिस इज़ मिष्टी दोई. सो इस तरह की जो मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं, वो मिल्क से बनती हैं. वो इक्वली पसंद की जाती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं. सो ये भी मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से. सो नेक्स्ट, एनिमल्स गिव अस एग्स. एनिमल्स हमें एग्स देते हैं. सम एनिमल्स गिव अस एग्स. कुछ एनिमल्स हमें एग्स देते हैं, लाइक हेंस, डक्स, ऑस्ट्रिच और एम्यू. ये एनिमल्स हमें एग्स देते हैं जो खाए जाते हैं. सम ऑफ अस ईट एग्स. हम में से कुछ एग्स खाते हैं. एनिमल्स गिव अस फ्लैश. एनिमल्स हमें फ्लैश देते हैं. पीपल हु ईट मीट और फ्लैश ऑफ सर्टन एनिमल्स, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. सो कुछ एनिमल्स हमें फ्लैश या मीट देते हैं, लाइक गॉट से हमें मीट मिलता है. दिस इज़ हेन. हेन हमें फ्लैश देती है. सो लोग इन्हें खाना पसंद करते हैं. ये सोर्स ऑफ फूड है कुछ लोगों के लिए. सम पीपल आर फंड ऑफ ईटिंग सी फूड. कुछ लोग सी फूड खाना पसंद करते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सी या रिवर वाटर में या लेक्स में मिलते हैं, उनका फ्लैश भी लोग खाते हैं. सो हेयर यू कैन सी, यहाँ फिश इज़ देयर. पीपल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. लॉबस्टर इज़ देयर, क्रैब्स, प्रॉन्स. ये सब सी फूड के एग्जाम्पल हैं जो लोग खाते हैं. एनिमल्स गिव अस वूल. एनिमल्स हमें वूल देते हैं. व्हाट इज़ वूल? वूल क्या होता है? ऊन होती है. वूल एक तरह का जो फाइबर है, वो कैसे हमें मिलता है? कुछ एनिमल्स के हेयर को रिमूव करके और उन हेयर से ही एक स्पिन करके उसे वीव करके एक थ्रेड बनाया जाता है जिसे वूल कहते हैं. सो सर्टेन एनिमल से सर्टेन तरह की वूल हमें मिलती है. सो वी गेट वूल फ्रॉम शीप. शीप से हमें वूल मिलती है. दिस इज़ मरीनो शीप. जो इसकी वूल है, इससे मिलने वाली वूल वो बहुत वार्म मानी जाती है. कैमल से भी हमें वूल मिलती है. दिस इज़ रैबिट. रैबिट का जो फर है, उसके जो हेयर्स हैं, उन्हें वीव करके भी वूल बनाई जाती है. गॉट से भी हमें मिलती है. दिस इज़ एन एनिमल फाउंड इन अफ्रीका. उससे मिलने वाली भी जो वूल है वो भी बहुत वार्म होती है. कुछ फॉक्स हैं, उनसे भी वूल मिलती है. कुछ सर्टेन तरह की फॉक्स हैं. याक एक ऐसा एनिमल है जो हिली एरियाज़ में मिलता है. उसके जो हेयर से भी वूल बनाई जाती है, वो भी बहुत वार्म होती है. सो ये वूल हमें एनिमल से मिलती है. वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन टू कीप अवर सेल्व्स वार्म. हम अपने आप को वार्म रखने के लिए वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. सो आई टोल्ड यू अबाउट द पीपल हु लिव इन इग्लूज. मैंने आपको इग्लूज में रहने वाले लोगों के बारे में बताया था जिन्हें एस्कीमोस बोलते हैं. एस्कीमोस अपने आप को उस इग्लू जो कि स्नो हाउस है कैसे वार्म रखते हैं? वो एनिमल की जो स्किन है उसके बने हुए कपड़े पहनते हैं. सो वो हर एनिमल की स्किन नहीं होती. कुछ सर्टेन एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन को वो कपड़ों के जैसे पहनते हैं, वो बहुत उन्हें वार्म रखती है. सो एनिमल्स आर सोर्स ऑफ वूल टू अस. एनिमल्स गिव अस लेदर. एनिमल्स हमें लेदर देते हैं. फ्रॉम वेयर डू वी गेट लेदर फ्रॉम? हमें लेदर कहाँ से मिलता है? वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की जो स्किन है उसे वॉश करके और उसे कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो वो लेदर मिलता है. द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक कैमल्स, गॉट्स, बफेलोज एंड स्नेक्स, पिग्स, क्रोकोडाइल्स इज़ यूज फॉर मेकिंग लेदर. इन एनिमल्स की स्किन्स है वो यूज़ होती हैं लेदर बनाने के लिए. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कुछ एनिमल्स को जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब जो बहुत कम है, जो एग्जिस्ट करते हैं, बहुत उनकी क्वांटिटी कम रह गई है, उनकी संख्या कम है, उन्हें भी मार दिया जाता है उनकी स्किन को लेने के लिए. सो लेदर से क्या चीज़ें बनती हैं? शूज़, बैग्स, पर्सेस, बेल्ट्स, वो लेदर से बनते हैं. कुछ एनिमल्स की स्किन को जो कि वो फर है वो भी यूज़ किया जाता है एक मफलर की तरह यूज़ करने में. वो बहुत ही कॉस्टली होता है. सो ये चीज़ें गलत हैं. इट इज़ रॉन्ग टू किल एनिमल फॉर लेदर. एनिमल्स को लेदर के लिए मारना बहुत बुरी चीज़ है.
You can see here certain snakes are also used. उन जो कुछ स्नैक्स हैं, कुछ तरह के स्नैक्स हैं, उनकी स्किन से भी कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं. दिस इज़ डियर, ये डियर है. रैबिट है जिसका फर यूज़ होता है. तो इस दिस इज़ कंगारू. सो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उन्हें मारा जाता है उनकी स्किन को गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए. सो आई वॉन्ट टू टेल यू वी शुड ओनली यूज़ द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. जो एनिमल्स डेड हो गए हैं तब भी उनकी स्किन यूज़ की जा सकती है इंस्टेड ऑफ किलिंग देम फॉर लेदर और फॉर एनी अदर थिंग. सो कुछ एलिफेंट्स हैं, उन्हें भी मारा जाता है उनके टस्क्स को, जो उनके जो दांत होते हैं जिन्हें टस्क्स बोला जाता है, वो लेने के लिए, क्योंकि वो टस्क बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं और उनसे कुछ ऑर्नामेंट्स और कुछ शो पीसेस बनाए जाते हैं. सो एनिमल्स हमें ये देते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग टू किल एनिमल्स फॉर दैट. एनिमल्स को इन चीज़ों के लिए मारना गलत है. सो वी शुड बी सेंसिटिव टू एनिमल्स. चिल्ड्रन, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म. हमें सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से. सिल्क वॉर्म एक इन तरह का इंसेक्ट होता है. आई टोल्ड यू कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स की ही कैटेगरी में, उन्हीं के ग्रुप में आते हैं. सो दिस इज़ यू कैन से द इमेज ऑफ दिस सिल्क वॉर्म, जो कि मलबरी लीव्स को खाता है. दिस इज़ मलबरी लीफ. इस पेड़ की लीफ को वो खाता है और उसको खाने से उसके जो शरीर में एक लार बनता है, एक सलाइवा बनता है, उसी को यूज़ करते हुए सिल्क बनाया जाता है, एक फाइबर जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है. सो सिल्क वॉर्म्स को लार्ज स्केल पर रेयर किया जाता है मलबरी ट्रीज़ पर, सिल्क के फाइबर को प्राप्त करने के लिए. चिल्ड्रन, दीज आर इमेजेस ऑफ सिल्क साड़ीज़ दैट आर मेड फ्रॉम सिल्क, जो कि सिल्क से बनी हुई है. सिल्क, एज यू कैन सी, दिस फाइबर इज़ वेरी शाइनी और ये इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द एक्सपेंसिव फाइबर्स ऑल ओवर. ये बहुत महंगा और एक बहुत ही फाइनेस्ट फाइबर माना जाता है. अदर क्लोथ्स दैट आर मेड ऑफ सिल्क कैन बी कुर्ताज, दुपट्टाज, और इट कैन बी लाइक दैट मफलर्स, ड्रेसेस. सो इस तरह के और भी कपड़े बनाए जाते हैं सिल्क से. कर्टन्स भी लोग यूज़ करते हैं. वो बहुत एक्सपेंसिव फाइबर माना जाता है. द रियल सिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी एक्सपेंसिव फाइबर. सो ये हमें सिल्क वॉर्म से ही मिलता है. और सिल्क वॉर्म क्या है? एक एनिमल है जिसे सिल्क फाइबर बनाने के लिए रियर किया जाता है. एनिमल्स मेक आवर वर्क ईजी. एनिमल्स हमारा काम आसान बना देते हैं. सम एनिमल्स मेक आवर वर्क ईजी. कुछ एनिमल्स हैं हमारा काम आसान बनाते हैं. हेयर यू कैन सी इन दीज इमेजेस, दिस इज़ द इमेज ऑफ ऑक्सन. दे प्लो आवर फील्ड. वो हमारा फील्ड को प्लो करते हैं, खेत को जोतते हैं. वो उस सॉइल को टिल करते हैं ताकि फसल बोई जा सके. हेयर यू कैन सी दिस इज़ एन इमेज ऑफ बुलक कार्ट. बुलक कार्ट का इमेज है. बुलक्स इसे खींच रहे हैं और यहाँ पर ये जो रखा हुआ है, इट कैन बी हे, और ये फसल हो सकती है हार्वेस्टिंग के बाद. वो रखी हुई है तो वो उसे कैरी कर रहे हैं. और कार्ट को कौन कैरी कर रहे हैं? ये बुलक्स. दिस इज़ द इमेज ऑफ एन एलिफेंट जो कि लोड कैरी कर रहा है. इन फॉरेस्ट एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी लॉग्स ऑफ वुड. एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता है लॉग्स ऑफ वुड को कैरी करने के लिए. वो बहुत हैवी होते हैं लॉग्स ऑफ वुड, तो एलिफेंट्स यूज़ होते हैं. हेयर यू कैन सी दिस इज़ द इमेज ऑफ ए कैमल, जो कि उसके पीठ पर भी ये लोड है तो वो उसे कैरी करता है. सो इन एरियाज़ जहाँ कैमल्स होते हैं, जो हमने पढ़ा है, हमें पता है कि डेजर्ट एरिया में कैमल्स ही वो लोड कैरी करते हैं. कुछ और एनिमल्स हैं लाइक हॉर्सेस, डोंकीज़, वो भी हमारे लिए लोड कैरी करते हैं. कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ स्नो होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज़, और कुछ हमारे इंडिया में भी ऐसे एरियाज़ जहाँ स्नो होती है सारा साल. वहाँ कुछ डॉग्स होते हैं, वो उस स्लेज को कैरी करते हैं. एक गाड़ी सी होती है, एक कार्ट होती है जिस पे लोग ट्रैवल करते हैं. ट्रैवल इन द सेंस वो फ़न के लिए थोड़ी दूर जाते हैं, उसकी सवारी करते हैं. सो वो टूरिस्ट प्लेसेस में ऐसा होता है.
एनिमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर नेविगेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अभी भी एनिमल्स का यूज़ होता है कुछ जगह पर। सो हेयर यू कैन सी ये हॉर्स हैं जिस कार्ट को वो ले जा रहे हैं। जो मैरिजेस में ऐसी गाड़ी हो सकती है और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस में भी ऐसी कैरेज रख सकते हैं ताकि लोग उनकी सवारी कर सकें। हेयर यू कैन सी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल्स का सहारा ले रहे हैं लोग। इन डेजर्ट एरियाज कैमल जो है उसे शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, क्योंकि वो इतनी हॉट सैंड में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो मदद करता है। जो कैमल है वो बिना कुछ खाए पिए कुछ दिन तक सरवाइव कर सकता है डेजर्ट की इतनी हीट में। सो एलिफेंट यूज़ किया जाता है। इन हिली एरियाज़ हम एक एनिमल्स देखते हैं जिसे पोनी कहा जाता है। वो हॉर्स का एक छोटा एक वर्जन होता है। वो भी कैरी करने में वहाँ लोगों को हेल्प करता है। हम लोग नहीं चढ़ पाते हैं तो उस पोनी पर हम सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा। सो कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। Children, there are other animals that are quite useful to us. Here you can see, this is honeybee. We get honey from honeybees. What is the use of honey? Honey का क्या use है? We spread honey on bread like jam. Honey is also used as medicine. honey को दवाई के रूप में भी यूज़ करते हैं for curing cough and cold. जुकाम हो जाए या खांसी आ जाए तो आपने वो हनी लिया होगा। तो हनी एक नेचुरल फूड है जो किसी एनिमल द्वारा बनाया जाता है, जो कि इंसेक्ट है, हनी बी। ये कैसे हनी बनाती है? ये हेयर यू कैन सी, ये फ्लावर्स के नेक्टर को सक करती है और उससे हनी बनाती है। सो हनी वी गेट फ्रॉम हनी बीज। चिल्ड्रन, पीपल कीप सम एनिमल्स लाइक पेट्स एट देयर होम। वो अपने घर में या फार्म में एनिमल्स को रखते हैं, उन्हें पेट एनिमल्स कहा जाता है। सम ऑफ द पॉपुलर पेट एनिमल्स आर दिस इज डॉग। डिफरेंट breeds of dogs are kept at home as pet animals. This is parrot. Parrot is also kept at home. This is rabbit. This is turtle or tortoise you can say. This is cat. This is again a cat. This is owl. This is fish. फिश भी रखते हैं लोग घरों में, एक्वेरियम में। कलरफुल फिश रखते हैं, कुछ कलरफुल बर्ड्स भी रखते हैं। डॉग्स गार्ड अवर होम्स। डॉग्स हमारे घर को गार्ड करते हैं। कैट्स कीप द माइस अवे। कैट्स हैं जो वो चूहों को दूर भगाती हैं। सो वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। इस तरह के एनिमल्स और ये एनिमल्स ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं। सो लोग इन्हें घर में रखना पसंद करते हैं। सम अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स आर द डंग ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउ, कैमल्स एंड गॉट्स इज यूज्ड एज मैन्योर। कुछ एनिमल्स का डंग है वो मैन्योर के जैसे यूज़ होता है, खाद के रूप में यूज़ किया जाता है फील्ड्स में, और जिससे मैन्योर से क्या होता है, फसल अच्छी होती है। सो काउ डंग केक्स एनिमल्स काउ डंग केक्स आर यूज्ड एज फ्यूल। काउ डंग केक्स जो हैं वो बनाकर सुखा लिए जाते हैं और उन्हें चूल्हे में जलाया जाता है या ऐसा कुछ बनाया जाता है ताकि उसे फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, ईंधन के रूप में जिसे कहते हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स। हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड बी सेंसिटिव टू देम। हमें हमारे घर में हैं, हमारी सराउंडिंग्स में हैं या हमारे फार्म में हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उन्हें उनकी केयर हम कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट गो टू द फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट में तो नहीं जा सकते हैं, बट जो हमारे आसपास हैं एनिमल्स उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें उन्हें टीज़ नहीं करना है। वी शुड टेक केयर ऑफ़ देम। वी शुड बी काइंड टू देम। हमें उनके लिए दयालु होना चाहिए। दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। वो भी लिविंग बींग्स हैं हमारी तरह। उन्हें भी वो पेन, वो जो वेदर की सराउंडिंग्स हैं, वेदर कंडीशंस हैं, वो उन्हें भी फील होती हैं। वी शुड टेक द सिक एनिमल्स। हमें जो सिक एनिमल्स हैं उन्हें वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उन्हें ट्रीटमेंट दिलाना चाहिए, और उन्हें हमारे सराउंडिंग्स में है या हमारे फार्म में है या घर पर है तो उन्हें साफ़ शेल्टर देना चाहिए, क्लीन शेल्टर, और प्रॉपर फूड, और जो कि उनके अकॉर्डिंग हो, और
क्लीन वाटर देना चाहिए। सो एनिमल्स की हम इस तरह से केयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वी शुड बी सेंसिटिव टू देम, हमें उनके लिए सेंसिटिव होना है। सो एनिमल्स आवर फ्रेंड्स, वो हमारे फ्रेंड्स हैं और वो दे मेक आवर वर्ल्ड वंडरफुल, वो हमारा संसार है वो वंडरफुल बनाते हैं। और हमें अच्छा लगता है एनिमल्स जो कि इंसेक्ट के रूप में है या बर्ड्स के रूप में है या वो दूसरे लैंड एनिमल्स हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं किसी ना किसी तरीके से। सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 10, यूजफुल एनिमल्स। So children, I want to tell you that we will be starting or doing bookwork exercises of this chapter in our next EVS class. Till then, bye bye, take care.